قبائلی لشکر کی آمد کے بعد مہاراجہ نے ریاست جموں کشمیر کے بھارت سے الحاق کا اعلان کر دیا، جسے بنیاد بنا کر بھارت نے اپنی فوجیں کشمیر میں اتار دی۔ گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستانی فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل گریسی کو کشمیر کی جانب پیش قدمی کا حکم دیا، مگر جنرل گریسی نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ ہے وہ پراپیگنڈا جسے سرکاری سچ کے طور پر پیش کیا گیا، لیکن آپ کو یہ جان کر شدید حیرت ہوگی کہ اس پراپیگنڈے کا حقیقت سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ پورا سچ یہ ہے کہ قائد اعظم نے اپنا یہ فرمان واپس لے لیا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ ترازو کے سلسلے یاد ماضی کی نئی قسط میں آج ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ اس سلسلے کی پہلی قسط میں بتایا جا چکا ہے کہ قبائلی لشکر 22 اکتوبر 1947 کو کشمیر کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت جنرل میسروی پاک فوج کے سربراہ تھے، جن کے رخصت پر چلے جانے کے بعد جنرل گریسی نے قائم مقام کمانڈر ان چیف کی ذمہ داریاں سنبھالے رکھی۔ جنوری 1948 میں نئے آرمی چیف کے انتخاب کے لیے قائد اعظم کو 3 ناموں پر مشتمل پینل تجویز کیا گیا، جس میں لیفٹیننٹ جنرل رسل پاشا، لیفٹیننٹ جنرل سر فرانسس ٹکر اور جنرل سر ڈیوڈ ڈوگلس گریسی کے نام شامل تھے۔ قائد اعظم نے افواج پاکستان کے کمانڈر ان چیف کے طور پر جنرل گریسی کا انتخاب کیا۔ کامن سینس کی بات یہ ہے کہ اگر جنرل گریسی نے واقعی حکم عدولی کی ہوتی تو کیا قائد اعظم انہیں افواج پاکستان کی قیادت سونپنے کا فیصلہ کرتے؟ میجر جنرل سید وجاہت حسین، جو افواج پاکستان کے دوسرے کمانڈر ان چیف جنرل گریسی کے اے ڈی سی کے طور پر خدمات سر انجام دیتے رہے، ان کا خیال ہے کہ حکم عدولی کا فسانہ قائد اعظم کی وفات اور جنرل گریسی کی بطور کمانڈر ان چیف سبکدوشی کے بعد گھڑا گیا، اور اس پراپیگنڈے کے پیچھے میجر جنرل اکبر خان سمیت بعض فوجی افسروں کا ہاتھ ہے۔ میجر جنرل وجاہت حسین کے خیال میں حکم عدولی کی بات پہلی بار ایلن کیمبل جانسن کی کتاب مشن ود ماؤنٹ بیٹن میں سامنے آئی تو انہوں نے جنرل گریسی سے پوچھا، سر کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے قائد اعظم کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا؟ جنرل گریسی نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ بات سراسر غلط اور بے بنیاد ہے۔ میجر جنرل وجاہت حسین اپنی کتاب میموریز آف اے سولجر میں اس حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جنرل گریسی اور قائد اعظم کے تعلقات بہت خوشگوار تھے، جس کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ جب جنرل گریسی کور کمانڈر کراچی تھے تو قائد اعظم نے انہیں اپنی سرکاری رہائش گاہ فلیگ اسٹاف ہاؤس میں رہنے کی اجازت دی۔ قائد اعظم نے جنرل گریسی کو کشمیر کی طرف پیش قدمی کا حکم ضرور دیا تھا، لیکن جب دونوں ملکوں کے مشترکہ سپریم کمانڈر فیلڈ مارشل ایکنلک اور جنرل گریسی نے قائد اعظم کو اس اقدام کے ممکنہ نتائج سے آگاہ کیا تو قائد اعظم نے بطور گورنر جنرل جاری کیے گئے اپنے سابقہ حکم کو واپس لے لیا۔ گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح کی جانب سے کشمیر کی جانب پیش قدمی کے حکم کو واپس لیے جانے کا تذکرہ نہ صرف میجر جنرل وجاہت حسین نے اپنی کتاب میموریز آف اے سولجر میں کیا ہے، بلکہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم چودھری محمد علی نے بھی اپنی کتاب دی ایمرجنس آف پاکستان میں اس بات کی تصدیق کی ہے۔ اس کے علاوہ آئی ایس آئی کے پہلے سربراہ میجر جنرل سید شاہد حامد نے بھی اپنی تصنیف ارلی ایئرز آف پاکستان میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ قائد اعظم نے کشمیر کی طرف پیش قدمی کرنے کا حکم واپس لے لیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جنرل گریسی نے تاج برطانیہ سے وفاداری نبھانے کے بجائے پاکستان کے مفادات کو مقدم جانا اور کشمیر کے ایشو پر ہونے والی پہلی پاک بھارت جنگ میں سپہ سالاری کا حق خوب ادا کیا۔ مخدوش حالات کے پیش نظر جب جنرل گریسی کو اپنی ذاتی سیکیورٹی کی طرف توجہ دلائی گئی تو انہوں نے کہا، مجھے کون مارے گا؟ مجھے ذاتی محافظ درکار نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہماری فوج کا ہر سپاہی کشمیر کے محاذ پر تعینات ہو۔ جنرل گریسی نے اپنی جنگی مہارت اور تجربے سے بھارت کو کیسے مات دی، اس کا اندازہ بھارتی ہم منصب کو چکمہ دینے سے متعلق ایک دلچسپ واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ دسمبر 1948 میں پاک فوج کا آپریشن وینس پورے جوبن پر تھا۔
भारतीय फौज को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा था और जनरल ग्रेसी को यह बात मालूम थी कि भारत जंगबंदी के लिए बहुत बेताब है। जनरल ग्रेसी ने अपने एडीसी को बुलाया और बताया कि आज भारतीय फौज के कमांडर इन चीफ का टेलीफोन मुतवक्के है, मगर उसे टरखाना है ताकि हम जंगबंदी से पहले कारी ज़रब लगाने में कामयाब हो जाएं। 3 बजे के करीब टेलीफोन की घंटी बजी। भारतीय कमांडर इन चीफ के एडीसी कैप्टन भारत सिंह ने कहा, जनरल राय बहादुर पाकिस्तानी हम मनसब से फौरी तौर पर बात करना चाहते हैं। जनरल ग्रेसी के एडीसी कैप्टन वजाहत हुसैन ने टाल मटोल से काम लेते हुए कहा कि चीफ साहब इस वक्त मौजूद नहीं और मालूम भी नहीं कि वो कहाँ होंगे। मैं राब्ता करने की कोशिश करता हूँ, आप कुछ देर बाद कॉल करें। इस दौरान जनरल ग्रेसी ने वजीर आज़म लियाकत अली खान से टेलीफोन पर बात की और उन्हें ताज़ा तरीन पेशरफ से आगाह करते हुए बताया कि जनरल राय बहादुर राब्ता करने की कोशिश कर रहा है, मगर मैं बात करने से गुरेज कर रहा हूँ। कुछ देर बाद भारत से दूसरी कॉल आ गई। जनरल ग्रेसी के एडीसी ने बताया कि साहब यहाँ नहीं हैं और उनके बारे में कुछ मालूम भी नहीं हो रहा कि कहाँ हैं, हो सकता है वो गॉल्फ क्लब में हों। भारतीय सिपा सलार का एडीसी मिन्नत समाजत पर उतर आया और कहने लगा, मामला बहुत हसास नौयत का है, बराह करम किसी को गॉल्फ क्लब पैगाम देकर भेज दें। राब्ता मुनक़ते होने पर एडीसी ने जनरल ग्रेसी को इतला दी तो उन्होंने कहा, शाबाश, कुछ देर मजीद उलझाए रखो। उधर भारतीय कमांडर इन चीफ के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था और इधर जनरल ग्रेसी कभी 7 डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग जनरल लुफ्टस टुटेनम से सूरत हाल मालूम करते तो कभी डायरेक्टर आर्टिलरी ब्रिगेडियर मोरले को टेलीफोन करके तोपों की गन गर्ज बनाने का हुक्म देते। 1 घंटे के दौरानिए में तीसरी बार भारत से टेलीफोन आ गया। कैप्टन वजाहत हुसैन ने बताया कि गौफ क्लब में अफवाज पाकिस्तान के सरबराह को पैगाम भिजवाया गया है, मगर उनके यहां आने के लिए कुछ वक्त दरकार होगा। यह जवाब मिलते ही किसी ने कैप्टन भारत सिंह से टेलीफोन उचक लिया और गुस्सेली आवाज में कहा, मैं जनरल राय बहादुर बात कर रहा हूं, जनरल ग्रेसी से बात करवाओ। कैप्टन वजाहत ने फिर वही जुमला दोहराया कि चीफ साहब को पैगाम भेज दिया गया है, मगर वो अभी तक नहीं लौटे। जनरल बहादुर ने धाड़ते हुए कहा, देखो जवान, मैं भी इस घर में रहा हूं, गॉल्फ क्लब आर्मी हाउस से मुत्तसिल है और इतना वक्त नहीं लगना चाहिए, प्लीज उनसे राब्ता करें और फौरी बात करवाएं। कैप्टन वजाहत हुसैन ने हर मुमकिन कोशिश की यकीन दहानी करवाने के बाद फोन बंद कर दिया और जनरल ग्रेसी को सूरत हाल से आगाह किया। जनरल ग्रेसी मुस्कुराए और एक बार फिर फ्रंट लाइन पर तैनात कमांडरों से बमबारी की तफसीलात मालूम करने लगे। जब तसल्ली हो गई और एक बार फिर वजीर आज़म लियाकत अली खान से बात की और उन्हें सूरत हाल से आगाह करते हुए बताया कि भारतीय फौज के सरबराह जंग बंदी के लिए मरे जा रहे हैं, हम अपने मकासद हासिल कर चुके हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो सीज फायर की तफसीलात तय कर ली जाएं। वजीर आज़म ने इजाज़त दे दी तो तब कहीं जाकर जनरल ग्रेसी ने भारतीय हम मनसब से बात की। जनरल ग्रेसी जमहूरियत पसंद सिपा सालार थे और फौज की सियासी मामलात में मदाखलत उन्हें सख्त नापसंद थी। तरक्की के मुंतज़र पाक फौज के मकामी अफसर ऐवान इक़्तिदार की राहदारियों का तवाफ़ करते पाए जाते। जनरल ग्रेसी न सिर्फ खफगी का इजहार करते बल्कि सख्त डांट डपट भी करते। इस हवाले से जनरल अयूब खान और मेजर जनरल अकबर खान की सरजनिश के 2 वाक़यात दिलचस्पी का सामान लिए हुए हैं। एक बार जनरल ग्रेसी मशरकी पाकिस्तान गैरिजन का दौरा करने जा रहे थे और चूंकि पाक फजाइया के कार्गो त्यारे पर सफर कर रहे थे तो रिफ्यूलिंग के लिए लाहौर रुकना पड़ा। इस दौरान ओरिएंट एयरवेज की ढाका से आने वाली फ्लाइट ने लैंड किया तो मुसाफिर उतरने लगे। अचानक जनरल ग्रेसी ने हड़बड़ाकर कहा, ये अयूब यहाँ क्या कर रहा है, और फिर अपने एडीसी को कहा, इसे बुला कर लाओ। जनरल ग्रेसी ने गुस्से से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेजर जनरल अयूब खान ने कहा, सर मैं वजीर आज़म से मिलने कराची जा रहा हूँ। जनरल ग्रेसी ने कहा, तुम्हारा वजीर आज़म से क्या काम? मैं तुम्हारे डिवीजन को अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम्हें कराची का तवाफ करने से फुर्सत नहीं। इसके बाद जनरल ग्रेसी के हुक्म पर अयूब खान का सामान आर्मी चीफ के कार्गो जहाज में मुंतकिल कर दिया गया और वो उसे अपने साथ ढाका ले गए। दूसरा वाकया जीओसी कोयटा मेजर जनरल अकबर खान से मुतल्लिक है, जिन्हें 1948 की पाक भारत जंग के बाद कराची से कोयटा भेजा गया था।
जनरल ग्रेसी वज़ीर आज़म लियाकत अली खान से मिलने के लिए कराची के माड़ीपुर मिलिट्री एयरबेस पर उतरे तो स्टेशन कमांडर ने उनका इस्तकबाल किया और वहाँ से कार के ज़रिए वो वज़ीर आज़म हाउस रवाना हुआ। रास्ते में एक झंडे वाली फौजी गाड़ी गुजरते देखकर जनरल ग्रेसी ने कहा, अकबर, ये यहाँ क्या कर रहा है, रोको इसे। गाड़ियाँ रुक गईं तो उन्होंने मेजर जनरल अकबर खान से कहा, तुम्हें तो कोयटा में होना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पहले तो जनरल अकबर ने यह बहाना तराशा कि वो यहाँ चीफ का इस्तकबाल करने आए हैं। जनरल ग्रेसी ने कहा, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया और वैसे भी मुझे वसूल करना होता तो तुम बर वक्त आते। इस पर जनरल अकबर खान ने कहा, मेरी बेटी मैट्रिक के पेपर दे रही है और इसलिए मैं कोयटा नहीं जा सका। यह जवाब सुनकर साथ खड़े एडीसी की हंसी छूट गई। जनरल ग्रेसी ने कहा, असल बात यह है कि तुम्हें वजीर आजम के इर्द गिर्द मंडलाते रहने का शौक है। जनरल अकबर खान को सुबह हर हाल में कोयटा पहुंचने का हुक्म देने के बाद जनरल ग्रेसी वापस गाड़ी में बैठे तो कहने लगे, मैं नहीं चाहता कि मेरे जेओसीज वजीर आजम की गाड़ी का दरवाजा खोलते। जनरल ग्रेसी सादगी पसंद सिपा सालार थे जिन्हें प्रोटोकॉल की हरगिज ख्वाहिश ना थी। क्या में पाकिस्तान के वक्त अमेरिका से जो 3 कैडिलैक गाड़ियां मिली उनमें से एक कमांडर इन चीफ को दे दी गई। जनरल ग्रेसी उसी गाड़ी में सिविलियन ड्राइवर और एडीसी के साथ सफ़र किया करते थे और उनके साथ और कोई गाड़ी प्रोटोकॉल के लिए नहीं हुआ करती। जब गाल्फ कोर्ट जाना होता या कोई और निजी मसरूफियत होती तो सरकारी गाड़ी इस्तेमाल न की जाती। जनरल ग्रेसी की कैडिलैक कार इस कदर पुरानी और फटीचर थी कि एक बार लाहौर से रावलपिंडी आते हुए गाड़ी बंद हो गई और चलने से इनकार कर दिया तो जनरल ग्रेसी और उनके एडीसी को खुद नीचे उतरकर इस गाड़ी को धक्का लगाना पड़ा। यूं तो जनरल ग्रेसी की कामयाबियों और कारनामों की फहरिस्त बहुत तवील हो सकती है, मगर बतौर सिपा सालार उनका सबसे बड़ा कारनामा वाह कैंट में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का क़याम है। विरासत में मिलने वाले असलहा पर भारत ने कब्जा जमा लिया तो जनरल ग्रेसी ने रावलपिंडी का नक्शा निकाला और खुद गाड़ी चलाते हुए टेक्सला जा पहुंचे, जहां उन्होंने असला साज फैक्ट्री की जगह का इंतखाब किया और एक फौजी अफसर को जरूरी मशीनरी खरीदने के लिए बरतानिया भेज दिया। आज पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का शुमार दुनिया के चंद बड़े असला साज इदारों में होता है। ये था अफवाज पाकिस्तान के दूसरे कमांडर इन चीफ जनरल ग्रेसी के दौर का तस्करा। अब तक के लिए इतना ही। बिलाल औरी को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं या फिर कोई तजवीज़ तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 033284105337 दस्तियाब है। अपना फीडबैक दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी घंटी दबाएं और देखते रहें हमारा चैनल तराजू।